یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔ آج کا جو ہمارا اپدیش ہے وہ ہے خون اور گوشت کے اوپر، یعنی لہو اور ماس پر۔ اور لہو اور ماس کے بارے میں ہم موسیٰ کی شریعت کے ادھین، یعنی پرانے واچا پرانے عہد نامے کے ادھین اور نئے عہد نامے کے ادھین مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے مکاشفہ کے روح سے اور مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کی معرفت روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ بیٹے اور باپ کے کلام کے ساتھ فضل اور سچائی یوٹیوب چینل کے مادھیم سے میں ہوں یشاری میل۔ لگاتار سنتے رہیں اور ہمارے آپ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب موسیٰ کی شریعت پیدائش یعنی اتپت یعنی جینسس 9 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ اور پھر لیویٹیکس یعنی لیویاں دی پوتھی اس کی 19 باب اور 28 ورس میں لکھا ہے، تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، یعنی جو آج کل ٹیٹوز کا رواج ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور پھر بھوستھا سار دی پوتھی یعنی ڈیوٹرنمی 12 آیت میں لکھا ہے، فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تم خون کو نہ کھاؤ، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، خون ہی تو جان ہے، سو تم گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔ اب مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کے ادھین نئے عہد نامے میں خون اور گوشت کے بارے میں مسیح یشوع کہتے ہیں، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ پرانی ویوستھا میں یہ لکھا ہے جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے، کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ جو اسرائیلیوں نے منہ کھایا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وچن دے دھاری ہوا اور انوگرہ اور سچائی سے پریپورن ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرا کیا۔ اب یسوع مسیح کا بدن کیا ہے؟ یسوع مسیح کا وچن، کلام، فضل اور سچائی کے ادھین جو کلام ہے، روح اور سچائی کا کلام ہے، وہ نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ نہیں۔ اور اس بدن کا خون یعنی جان ہے انوگرہ اور سچائی، فضل اور سچائی، ٹروتھ اینڈ گریس۔ اس بدن میں جو خون ہے اور اس خون میں جو جان ہے وہ ہے انوگرہ اور سچائی۔ دے ہے یشوع مسیح کی تعلیم، وچن، کلام۔ جو وچن جو کلام ہے یشوع مسیح کا، وہ یشوع مسیح کی دے ہے،
मांस है, रोटी है। जो कोई वचन को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, ईमान नहीं लाता, वो उसके मांस और खून में शरीक नहीं, और वो कभी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। गोश्त यानी मांस यानी जिंदगी की रोटी किससे भरी हुई है? अनुग्रह और सच्चाई के खून से, और खून में जान होती है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए। अब मनुष्य का पुत्र जो है वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। अब जो पुत्र है वो ना इज्जत चाहता है, वो ना सेवा टहल करवाता है, बल्कि करता है और इज्जत करता है, और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे, जो बेटा है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यानी कलाम के और अनुग्रह और सच्चाई के, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसकी एक रोटी में भागी होते हैं। क्योंकि मसीह जो है, कलीसिया जो है, वो मसीह का बदन है, यानी हम एक रोटी हैं, एक इमारत है मसीह में। इसीलिए लिखा है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने पाया और प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्गतर और कामिलतर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी यानी जिस्मानी पाकीज़गी, बाहरी दिखावे की पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अजाली रूह के वसीले खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के बामुजिब अब्दी मिरास को हासिल करे। और वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो। क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होनी जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। इसीलिए पहला अहद भी यानी पुराना अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनांचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया, और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमे और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का, और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे,
जिस तरह की सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बीनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मसीह यीशु ने बदन के वसीले जो कुछ भी किया, मूसा की शरीयत पुराने अहद नामे के 10 हुक्मों की पुरानी वाचा के अधीन किया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पुराने अहद नामे के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के यानी जो पुराने अहद नामे के अधीन है उनको मोल लेकर, लहू से मोल लेकर, खून से मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और क्योंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब से वारिस भी हुआ। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें, किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों, तुरेत यानी मूसा की पहली 5 किताबें, नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। ऐ नादानो, और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद हो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरेत और नबियों के शहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह यानी खुदा की सिखाई हुई बातें, खुदा की तालीम यीशु मसीह जो फजल और सच्चाई के मुताहत पहुंची तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, जिसमें फजल और सच्चाई का कलाम नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है, अगर फजल और सच्चाई का मुकाशफा अनुग्रह का कलाम तुम में है, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और जिस्मानी नियत मौत है यानी पुराना अहदनामा, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है यानी नया अहदनामा। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं यानी पुराना अहदनामा, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं यानी नया अहदनामा यानी फजल और सच्चाई। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है। अब खुदा की शरीयत है फजल और सच्चाई, मोहब्बत, यीशु मसीह जिसका काम है जिंदगी और इत्मीनान देना। मूसा की शरीयत है गुनाह और मौत। अब खुदा की शरीयत के ताबी ना तो वो है और ना हो सकती है जिस्मानी नियत। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।